जन्म जन्मांतर के, कर्म कर्मांतर के, गुण गुणांतर के और युग युगांतर के जब पुण्य संचित होते हैं, एकत्र होते हैं, तब जाकर के इस पवित्र पुण्य स्थली पर आने का परम सौभाग्य मिलता है। हम जो किन्नर हैं वो माँ के द्वार पे इसलिए आते हैं क्योंकि हम मानते हैं ये मेरा मायका है और हम यहाँ आके शांति पाते हैं, और ये तो सृष्टि है। कामाख्यं काम संपन्नम कामेश्वरी हर प्रियम। कुछ मांगना पड़े और दे, वो तो देव है, और कुछ मांगने से पहले मिल जाए वही महामाई माँ कामाख्या है। माता का यहाँ इतना असीम कृपा है कि कोई भी आता है खाली हाथ यहाँ से नहीं जा पाता है, और माता उसकी मुराद पूरी करती है। इसीलिए यहाँ लाखों की नहीं करोड़ों के संख्या में भक्तजन यहाँ आते हैं। যিমান আপোনাৰ ডাঙৰ যিমান ঋষিমুনি বুলি ক'ব গ'লে যোনে সিদ্ধি লাভ কৰে ইয়াতে এবাৰ আহি সিদ্ধি কৰিবই লাগিব। ইয়াতে সিদ্ধি মুখ্য পীঠ বুলি জনা যায় এইখনক। ये स्थान वो पवित्र स्थान है, समूचे विश्व का एकमात्र स्थान ऐसा है जहाँ से जगत की उत्पत्ति है, जहाँ जगत की उत्पत्ति का मूल कारण है। बोलो सच्चे दरबार की जय, माँ कामाख्या नगरी की जय। रहस्यघन आध्यात्मिकतार নীলাচল পাহাৰ, একান্ত ধৰ্ম সাধনাত ব্ৰতী হোৱা দেশ বিদেশৰ অলেখ অঘৰী সাধু সন্ন্যাসীৰ বাবে পবিত্ৰ তীৰ্থস্থল নীলাচল পাহাৰ, যাৰ ৰহস্যই আজিও বহুতৰে মনত সৃষ্টি কৰে অলেখ কৌতূহলৰ। মা সতী আৰু ভগৱান শিৱৰ প্ৰেমৰ আৰম্ভণি হৈছিল এই নীলাচল পাহাৰতেই। দেৱী সতী আৰু মহাদেৱৰ অলৌকিক ৰহস্যই আজিও আলোড়িত কৰে অগণন ভক্তিপ্ৰাণ লোকক। তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ তপ জপ সাধনাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এই নীলাচল পাহাৰ। নীলাচল পাহাৰৰ অপূৰ্ব সৌন্দৰ্যৰ মাজতেই আছে শক্তিপীঠ মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰ। এইখন নীলাঞ্চল পৰ্বত। নীলাঞ্চল পৰ্বত এইকাৰণে হ'ল, নীলাঞ্চল পৰ্বত এইকাৰণে হ'ল যেতিয়া সতীৰ দেহ ইয়াতে মানে আত্মজা দিয়াৰ পিছত সতীয়ে, তাৰপিছত যেতিয়া ভগৱান শিৱে কান্ধত লৈ তেওঁৰ মৃত দেহটো মানে কান্ধত লৈ যেতিয়া ঘূৰি আছিল, তেতিয়া মানে মহাপ্ৰলয় হ'ল। মহাপ্ৰলয় হোৱাত এই যিটো ধ্বংসলীলা আৰম্ভ হ'ল, এইটো কোনেও ৰোধ কৰিব নোৱাৰিলে। মানে ব্ৰহ্মাদেৱে কাকুতি মিনতি কৰিলে, বিষ্ণুদেৱে কাকুতি মিনতি কৰিলে, কিন্তু তথাপি ৰাখিব পৰা নাছিল। তাৰপিছত কি হ'ল, যেতিয়া মৃতদেহটো যেতিয়া সেই কৰিলে, বিষ্ণুদেৱে যদি চক্ৰৰে কাটিলে, তেতিয়া এই 51 মানে 51টা মানে যিটো পীঠৰ সৃষ্টি হ'ল, যিটো 51টা পীঠ আজি আমি মানে মা ভগৱতীকে লৈ, কামাখ্যা মাক লৈ 51 পীঠৰ যিটো সৃষ্টি হ'ল, এই সৃষ্টিত মাৰ পীঠটো মূল পীঠ আছিল। আৰু মাৰ এই মূল পীঠটো থকাৰ কাৰণে এই মূল পীঠটো যেতিয়া এই ভূগৰ্ভত যেতিয়া পৰিল, তেতিয়া পাতাললৈকে গুচি গ'ল। আৰু পাতাললৈকে যোৱাৰ পিছত উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে যেতিয়া আহিল, তেতিয়া এই উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত নীলা ৰঙৰ এই পৰ্বতখন নীলা ৰঙত মানে আৱৰি ধৰিলে, আৰু তেতিয়াই এই পৰ্বতখনৰ নাম হ'ল নীলাঞ্চল। আদি শক্তি বা মা কামাখ্যা মন্দিৰত কৰা হয় যোনি পূজা। এই পূজাক লৈ বহুতৰে মনত আজিও সৃষ্টি হয় বহু কৌতূহলৰ।
কামাখ্যা মন্দিৰৰ মূল ভক্তিগৃহত নাই কামাখ্যা দেৱীৰ মূৰ্তি। পাহাৰৰ মাটিৰ পৰা 20 ফুট তলত থকা এটি গুহাত অৱস্থিত কামাখ্যা শক্তিপীঠ। যিটো আপুনি মন্দিৰ দেখা পাইছে, মন্দিৰৰ যিটো তলৰ ভাগ আছে সেইটো বিশ্বকৰ্মাই কামদেৱৰ লগত মিলি মন্দিৰটো বনাইছিল। তলৰ ভাগখিনি, ওপৰৰ ভাগখিনি সময়ৰ সোঁতত কিছু ধ্বংস হৈছিল আৰু এই ধ্বংসখিনি কোচবিহাৰৰ কোচ ৰাজা নৰনাৰায়ণ দেৱে নিজৰ ভায়েকক লৈ, চিলাৰায় দেৱক লৈ ওপৰৰ যিখিনি ধ্বংসাৱশেষ আছিল সেইখিনি বনাইছিল। আৰু এই আমি যিটো কামাখ্যা মন্দিৰ পাইছোঁ তেওঁলোকৰে অৱদান। ये जो अद्भुत, अकल्पनीय, अवर्णनीय स्थान है, इसका वर्णन करना बड़ा ही कठिन है। परम सौभाग्य उस व्यक्ति का होता है जो यहाँ पहुँचता है। जन्म जन्मांतर के, कर्म कर्मांतर के, गुण गुणांतर के और युग युगांतर के जब पुण्य संचित होते हैं, एकत्र होते हैं, तब जाकर के इस पवित्र पुण्य स्थली पर आने का परम सौभाग्य मिलता है। भुवनेश्वरी भवतारिणी मंगल मोक्ष प्रदायिनी कामन सिद्ध कामेश्वरी शक्तिशैल समन्विता। और यहाँ स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज विराजे हैं, जो सनातनीय परंपरा के स्तंभ हैं। नारायण, पद्म, भव, वशिष्ठ, शक्ति, पाराशर, व्यास, सुखदेव, गौड़पादाचार्य, गोविंदाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, ऐसी अनेकानेक आचार्यों की दिग्दर्शिक सनातनीय परंपरा के संवाहक पूज्य शंकराचार्य जी भगवान भी स्वयं यहाँ विराजे हैं और आदिशक्ति माँ पराम्बा की स्तुति कर रहे हैं। सौंदर्य लहरी के रूप में, आनंद लहरी के रूप में, कनक धारा के रूप में, ऐसी अनेकानेक स्तुतियों द्वारा माँ पराम्बा जगदम्बा की स्तुति कर रहे हैं। नमो भगवती भगेश्वरी योनि मुद्रा महोदरी शरण्ये शक्ति रूपाय देवी कल्याणी नमस्तुते। ये स्थान वो पवित्र स्थान है, समूचे विश्व का एकमात्र स्थान ऐसा है जहाँ से जगत की उत्पत्ति है, जहाँ जगत की उत्पत्ति का मूल कारण है, जहाँ तीनों कारण छुपे हुए हैं, जहाँ आकर के त्रिविध तापों का शमन होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुष्फलों की प्राप्ति होती है। कामाख्यं काम संपन्नं कामेश्वरी हर प्रियं कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। इस अम्बुवाची के समय में जो साधक या जो भी भक्त आकर के यहाँ पूजन अर्चन वंदन करता है, जप करता है, ध्यान करता है, अनुष्ठान करता है, साधना करता है, तो वो कोटि गुना, कोई साधारण नहीं, सहस्त्र भी नहीं, लक्ष भी नहीं, कोटि गुना फलदायी होती है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि फलदायी शब्द भी छोटा है। जहाँ आकर के मुमुक्षता मिलती हो, जहाँ आकर के कैवल्यता मिलती हो, वो स्थान कामाख्या है। कामाक्षी काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामाक्षी वरदे देवी नील पर्वत वासिनी स्वं देवी जगन्मातर योनि मुद्रे नमस्तुते। पूरे जगत की उत्पत्ति का मूल कारण ही यही है। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত হিন্দু ধৰ্মৰ এক প্ৰাচীন মন্দিৰ মা কামাখ্যা মন্দিৰ। পৃথিৱীৰ 51খন শক্তিপীঠৰ মাজত অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দিৰ। संपन्नं कामेश्वरी
কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰ অসমৰ সবাতোকৈ প্ৰসিদ্ধ আৰু জাগ্ৰত মন্দিৰ। देहि मे नित्यं কামাখ্যা মন্দিৰৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে সকলোকে দিয়ে মানসিক প্ৰশান্তি, যাৰ বাবে সকলো সময়তেই উখল মাখল হৈ থাকে নীলাচলৰ বুকু। সিদ্ধিৰ কাৰণে এইখন এখন মুখ্য পীঠ হৈ গ'ল আৰু এইখন তন্ত্ৰপীঠ বুলিও জনা যায়। ইয়াতে তন্ত্ৰ সাধনাও খুব উৎকৃষ্ট, কাৰণ যিহেতু দেৱীৰ ইয়াৰ পৰাই ফ্লুইডৰ পৰাই বীৰ্য মানে ওলাইছিল আৰু সেই মন্ত্ৰবিলাকে তান্ত্ৰিক হওক বা তন্ত্ৰিকবিলাকে তেওঁ সেই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিয়ে সিদ্ধি লাভ কৰে। ঠিক তেনেধৰণৰকৈ ইয়াতে তন্ত্ৰ সাধনাটো খুব প্ৰচলন আছে আৰু ইয়াৰ পৰাই তন্ত্ৰৰ উৎপত্তি হয়। नमोस्तुते कामाख्या वरदाय देवी नील पर्वतवासिनी तम जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्या काम स्वरूपे कामेश्वरी हर प्रिय कामना देहु नित्य कामेश्वरी नमस्तुते। क्लीं क्लीं कामाख्याय क्लीं क्लीं नमः। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबकमे गौरी नारायणे नमस्तुते। ओम कर्णांग बदाम घोरां मुक्तकेशु चतुर्भुजां कालिका दक्षिणा दिव्यं मुंडमाला विभूषितं शरणागतं दिनाथे प्रैत्रापाने सर्वे श्राफरो देवी नारायणे नमस्तुते। देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। हम तो माँ के गर्भगृह में कभी अंदर नहीं जा सकते हैं, पर यहाँ बैठे बैठे ही हमें कुछ मांगना नहीं पड़ता है। मांगने से पहले ही माँ हमें वो चीज़ प्राप्त करवा देती है। अब उससे बड़ी बात क्या कहे। जो साधारण सी बात यही है कि कुछ मांगना पड़े और दे, वो तो देव है, और कुछ मांगने से पहले मिल जाए वही महामाई माँ कामाख्या है। इसीलिए इसे महामाई कहा जाता है। सभी जगह माँ विराजती है, यहाँ महामाई विराजती है। অম্বুবাচী হৈছে গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা মন্দিৰত আয়োজিত এক বাৰ্ষিক মেলা। অম্বুবাচী এটা হিন্দু ধৰ্মীয় উৎসৱ। এই সময়ছোৱাত মাতৃ প্ৰকৃতি বা কামাখ্যা দেৱীৰ ঋতুস্ৰাৱ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। এই উৎসৱ শক্তিৰ ৰীতি নীতিৰে পালন কৰা হয়। শক্তি পৰম্পৰাৰ অনুগামীসকলে এই স্থানলৈ আহে আৰু তপস্যাত নিমগ্ন হয়। ৰহস্যৰে আবৃত নীলাচল পাহাৰত তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ সাধনা সিদ্ধিৰ বাবে অগণন লোকৰ আগমন ঘটে। লৌকিক অলৌকিক বহু কাৰ্যকলাপ দেখিবলৈ পোৱা যায় অম্বুবাচীৰ এই সময়ছোৱাত। অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তিৰ লগে লগেই বন্ধ কৰি দিয়া হয় কামাখ্যা ধামৰ দুৱাৰ। তিনিদিনলৈকে দেৱীৰ দুৱাৰ বন্ধ থাকে। ভোগ প্ৰসাদ আদি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাথাকে। চতুৰ্থ দিনা অৰ্থাৎ 26 তাৰিখে ৰাতিপুৱাই নিত্য পূজা, দেৱীৰ স্নান পৰ্ব সমাপনৰ পিছত মন্দিৰৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। এই অম্বুবাচী হ'ল এক ঋতুকালীন উৎসৱ। এইটো কোনো মেলা নহয়, অম্বুবাচী কোনো মেলা নহয়, এইটো এটা উৎসৱহে, ঋতুকালীন এটা উৎসৱ। এতিয়া বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডত পৃথিৱীত মিথুন ৰাশিৰ আদ্য নক্ষত্ৰৰ সংযুক্ত যেতিয়া হয় প্ৰথম পাত, সেই সময়ছোৱাত গোটেই পৃথিৱীখন ঋতুমতী হয় বুলি এটা
ধাৰণা আছিলে আৰু সেই উদ্দেশ্য ৰাখিয়ে যিহেতুকে ভগৱতী মা কামাখ্যা যোনি স্বৰূপা ইয়াত মা কামাখ্যাটো সেই সময়ছোৱাত ঋতুমতী হয় বুলি এটা আমাৰ লোকবিশ্বাস পূৰ্বৰ পৰা আমাৰ বংশানুক্ৰমে যিসকলে ইয়াতে পূজা সেৱা চলাই আহিছিলে আজি আমি তেওঁলোকৰে বংশাণু একাধিক্ৰমে দেউতা ককা দেউতা আজি দেউতা সকলোৱে যিধৰণে আমাক শিকাইছিলে যে এই সময়ত ভগৱতী এটা ৰস চলোৱা হয় বুলি এটা মান্যতা আছে সেই মান্যতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমিও সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজিলৈকে চলাই আহিছোঁ माँ शब्द का एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। हम जो किन्नर हैं वो माँ के द्वार पे इसलिए आते हैं क्योंकि हम मानते हैं ये मेरा मायका है और हम यहाँ आके शांति पाते हैं और ये तो सृष्टि है, इसी से हम सारे जीव जगत के लोग आए हैं, सब कुछ है, पूरा सृष्टि ये है और सृष्टि के पास आने से किसको नहीं शांति मिलती है। हमारा मानना है, हम किन्नरों का मानना है कि ये 3 दिन हम भी माँ के साथ रजस्वला होते हैं। इस दौरान हम भी शुद्धता प्राप्त करते हैं और जो माँ की ऊर्जा है वो ले जाके सारे साल हम एनर्जेटिक बने रहते हैं। इसी तरह से सालों साल आना लगा रहता है, आने की हिम्मत हम में नहीं है, वो बुला के लाती है। जय माँ कामाख्या, अपना हाथ हमारे सर पे रखना, पूरे पृथ्वी को शांति करना। माँ तुम बहुत भुक्तभोगी हो लेकिन हमारे भूल त्रुटियों को माफ़ करके पूरे पृथ्वी को शांति दो माँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। एकावन शक्तिपीठ में सबसे प्रथम शक्तिपीठ जो है माता का योनि मुद्रा यहाँ गिरा हुआ था, जिसके चलते यहाँ कोई भी आता है माता के दरबार से खाली नहीं जाता है और यहाँ पर अनेकों पूरे विश्व के लोग आते हैं और अपनी अपनी श्रद्धा को व्यक्त करके और माता से आशीर्वाद लेकर के और प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घर को चले जाते हैं। जो कोई भी माता से मांगता है माता तत्पर तत्क्षण उसी समय देती है और माता का यहाँ इतना असीम कृपा है कि कोई भी आता है खाली हाथ यहाँ से नहीं जा पाता है और माता उसकी मुराद पूरी करती है। इसीलिए यहाँ लाखों की नहीं करोड़ों के संख्या में भक्तजन यहाँ आते हैं और माता के दरबार में जा कर के और माता से विनती करते हैं और साष्टांग दंडवत करके अनुनय विनय करते हैं और कहते हैं कि हे माता आपकी महिमा अपरंपार है। चूँकि 51 शक्तिपीठ में प्रथम शक्तिपीठ
आपकी जो है मान्यता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहूँगा कि जो कोई भी इस चैनल को देखता है वह प्रतिवर्ष माता के दरबार में आवे और उनकी मुराद जो है अवश्य पूरी होगी, चूँकि माँ कामाख्या जो है सर्वोपरि है। बोलो सच्चे दरबार की जय, माँ कामाख्या नगरी की जय। सर्वे मंगले मांगले और शिवे सर्वारति साधिके और शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली और भद्रकाली कपालिनी और दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। हे माँ कामाख्या, हे माँ देवी, हे महामाया, हे करुणामयी माँ, हे जगत जननी, हे पालनहारी देवी, इस संसार में अम्बुबाची मेला एक वर्ष में एक बार आता है। ये वर्ष भक्तों के लिए सौभाग्य, धन, सुख, वैभव, यश, कीर्ति का आशीर्वाद प्रदान करता है। यह आसाम गुवाहाटी में स्थित है। माँ कामाख्या नगरी में तंत्र मंत्र साधना की साधना भी होती है। तंत्र मंत्र साधना के द्वारा भक्तों का कल्याण करने के लिए किया जाता है। ये कल्याण विश्व कल्याण के लिए जाप किया जाता है। माँ भगवती काम रूप देवी, कामना को पूर्ण करने वाली देवी, काम रूप कामना को पूर्ण करने वाली देवी कामाख्या रूप में आसाम में विराजी है। समस्त भक्त यहाँ पर दूर दूर से आते हैं क्योंकि माता का बुलावा आया है और चलो बुलावा आया है। जिसको माँ बुलाएगी उस दरबार पे पहुँचेगा। भगवती भगेश्वरी योनि मुद्रा महोदरी शरण्ये शक्ति रूपाय देवी कल्याणी नमस्तुते। त्वम् अद्या देवी कामाख्या रूपेण जगन्मातृका तच्चरणारविन्द सर्वभूतानां समर्पयामि। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनिमुद्रे नमस्तुते। मैं इस परम अवसर पर अम्बुवाची के इस एक ऐसे अवसर पर माँ से प्रार्थना करता हूँ, पराम्बा से प्रार्थना करता हूँ, जगत जननी से प्रार्थना करता हूँ। हे माँ, आप दशों महाविद्याओं की अधिष्ठात्री हैं। हे माँ, वर्तमान में जो पूरे समूचे विश्व में कहीं रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कहीं ईरान और इज़राइल, ऐसे ऐसे न जाने कितने देश आपस में लड़ रहे हैं और कैसी कैसी दुर्गम घटनाएं हो रही हैं। अभी अहमदाबाद की जो क्रैश की घटना थी वो भी बहुत दुखद थी। हे माँ पराम्बा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे त्रिलोक जननी, हे माँ विश्वमाता, हे जगत की आधात्री, आप समूचे जगत की रक्षा कीजिए। सबको सद्बुद्धि, सद्विवेक, सद्विचार दे करके समूचे विश्व का कल्याण कीजिए।